Hello everyone, welcome back to Target IES. I am Tekchand Deshwal and I had secured AIR 7 in UPSC Engineering Services 2018. Okay, now after completing our previous subject, the next subject that we will start is our power system. Fine, it is a very big subject plus scoring also, no doubt. Okay, it is a core subject for interview, prelims, mains in ESC as well as GATE also. So very important subject, and we will devote our most of the time for this subject. Okay, it is a big subject, so it will take time, but don't worry, we will do it slowly so that you can understand each concept easily, all the concepts easily. Now let's first have an overview of our power system syllabus. My syllabus is transmission part in this basics, and there will be some voltage control of the receiving end, sending end, reactive power control. ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स कौन से होते हैं जो हमने नेटवर्क में पढ़े थे, ए बी सी डी, ठीक है, उनको हम फिर से देखेंगे एक बार. ट्रांसमिशन लाइन परफॉर्मेंस, देन ट्रेवलिंग वेव्स. इन दिस यू विल सी द सर्ज वेव्स और लाइटनिंग स्ट्राइक्स ऑन अवर ट्रांसमिशन लाइंस. देन यू विल सी इंसुलेटर्स, जितने तरह के भी हैं, स्ट्रिंग इंसुलेटर और माइसेकल इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर. ओके, you will see all the insulators. Then you will see corona loss, effects of corona and how can we reduce the corona effect. Then cables, why we use cables, what is the advantage, disadvantage, design of the cable, voltage, stress, resistance, all those things you will see. Then the distribution of power, because as I have time and again I have always said you that what is the purpose of studying electrical engineering. We have to generate the power and we have to transmit this power to the load center and then we have to distribute it. It is the goal of an electrical engineer mainly. Okay, this power sector mein. Okay, you have to generate, you have to transmit, you have to distribute. Fine. Now my power system में मेरा जनरेशन भी आएगा, जनरेटर आएगा, जनरेटर में स्टेबिलिटी एनालिसिस इज पार्ट ऑफ माय पावर सिस्टम 2. देन फॉल्ट एनालिसिस भी आएगा, जनरेटर के ऊपर फॉल्ट हो. ओके, देन हियर ट्रांसमिशन लाइन तो पूरा का पूरा पावर सिस्टम का पार्ट है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ पावर सिस्टम. फाइन. देन द सेकंड यूनिट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स. मींस पावर जनरेट कर ली मैंने ट्रांसमिट भी कर दी, डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी. नाउ आई हैव टू डू द सेम इकोनॉमिकली, मींस एट द मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट. ओके, सो दैट कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो मार्केट में. ओके, देन फॉर दैट वी विल स्टडी इकोनॉमिक लोड डिस्पैच. इट इज नॉट इन गेट, नाउ इट इज ओनली इन इंजीनियरिंग सर्विसेज. इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, पावर जनरेशन मेथड्स, द वेरियस टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर प्लांट्स, और कौन सा मेरा बेस लोड पावर प्लांट होगा, कौन सा मेरा पीक लोड पावर प्लांट होगा, लाइक दैट. ओके, लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, मेरी जो फ्रीक्वेंसी होती है क्या, वैसे होती है आइडियली 50 हर्ट्ज, बट वी कीप 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 2%. ओके, तो ये देखना कि ऐसे मेरे को फ्रीक्वेंसी कैसे मेंटेन करनी है. ओके, देन द थर्ड पार्ट इज फॉल्ट एनालिसिस, स्टेबिलिटी, switch gear and protection. This protection part, protection of the transmission line, protection of generator, protection of transformer, differential relay, like that all we will study here. And then there is small topic HVDC, which is the latest technology to reduce the losses. Okay, so what is the syllabus of power system 2? Economic factors, economic load dispatch, power system 2, fault analysis and stability. And one more topic is there, that is my load flow analysis. Load flow analysis, ये किसका होगा मेरा, like Newton Raphson, Gauss Seidel. You might remember very long iterations. ठीक है, Gauss Seidel, Newton Raphson, तो वो जो भी है वो लोड फ्लो में आएगा. प्लस वन मोर इज माय पर यूनिट सिस्टम, ये भी हम पढ़ेंगे. एक स्पेशल हम इसे एक सेपरेट यूनिट पढ़ेंगे, बिकॉज पर यूनिट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट इन फॉल्ट एनालिसिस मेनली. ठीक है, तो जब हम पावर सिस्टम 2 पढ़ेंगे तो पर यूनिट सिस्टम प्लस, और फिर हमें एक 3 फेज के बेसिक्स भी देखने हैं. ओके, द बेसिक्स ऑफ 3 फेज and my per unit system. Okay, we will complete all these things. So when we will complete it, पहले हमें start करना पड़ेगा, only then we can complete all this. Fine. If you want to read books, then Nagarat Kothari, C.L. Wadhwa, Stevenson, this is mainly for protection
part, okay, protection and switch gear part. Stevenson is good. Otherwise you can refer any book, but I will recommend you first follow the notes, repeatedly revise the notes, do the questions of previous year plus take any test series, and then if you have any doubt in your any topic, और अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपका you are not very fluent, then उसी टॉपिक के सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बुक से, और if you want to study some theoretical points then you can use the book, otherwise this is sufficient. Okay, let's start our subject. First जो मैंने बोला आपको, what is the objective of this subject, मैं ये पावर सिस्टम क्यों पढ़ रहा हूँ. So broad basis there are 5 objectives, ठीक है. First is the cost of electrical energy per kilowatt hour is to be minimum. One by one we will do all 5, ठीक है. फर्स्ट है मेरा द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर इज टू बी मिनिमम. इसके लिए मेरा क्या होगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच, इकोनॉमिक फैक्टर्स, लोड फ्लो एंड पावर जनरेशन मेथड्स. कौन सा पावर प्लांट कहाँ पे यूज करूंगा मैं, किस टाइम पे कौन से पावर प्लांट सप्लाई करना है, कौन से पावर प्लांट को बेस लोड की तरह एक्ट कराना है, कौन से को पीक लोड की तरह एक्ट कराना है. नाउ माय सेकंड ऑब्जेक्टिव विल बी, ये आएंगे बाद में, दे आर ऑल इन द नोट्स बट आई एम टेलिंग यू एट वन प्लेस ओनली. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर इज टू बी मिनिमम. द सेकंड इज rated voltage and frequency is to be supplied. voltage rated and frequency rated. ऐसा नहीं हो कि मेरे घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी तो है but that is 100 volt and 30 hertz की आ रही है. if this is my supply then no equipment will function properly. So rated voltage and rated frequency need to be maintained over the wide variety of loads. Fine. Now third is reliable भी होनी चाहिए. My reliable power supply should be there. Power supply reliable नहीं है, it may happen that when you need it most, the power is not there. Okay. So and my fourth is faster fault identification. Faster fault identification and isolation. इससे क्या होगा मेरा, इससे मेरे पावर सिस्टम में ब्रेकडाउन्स कम होंगे. अगर मैं फॉल्ट को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि मेरा फॉल्ट कहाँ पे हुआ है, कौन सा फॉल्ट हुआ है मेरा, एंड इफ आई आइसोलेट इट टाइमली देन आई कैन सेव माय जनरेटर फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन. और सिंपल सी बात है, मैं अपने पावर सिस्टम को बचा सकता हूँ, अपने ग्रिड को कोलैप्स होने से बचा सकता हूँ इफ आई आइडेंटिफाई और आइसोलेट द फॉल्ट फास्ट. ओके, एंड व्हाट इज माय फाइनल फिफ्थ है मेरा, फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हैज टू बी देयर ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस. क्या मेरी flexible power transfer over wide range of voltages. और ये हम अचीव कैसे करेंगे, बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन. कैसे होता है मेरा, लाइक 11 kV से मेरा स्टार्ट हुआ, जनरेशन हुआ, देन इट गोज टू 220 kV, सपोज 220 kV और 440 kV और 765 kV है ना. देन ट्रांसमिशन लाइन से गया, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड, पहले 66 kV और 120 kV, then 33 kV, then 11 kV and then it goes to 400 volt 3 phase. Okay, तो कोई भी कंज्यूमर मेरा 33 kV चाहता है तो he can get 33 kV also, 11 kV also, 400 kV also, 66 kV also and 132 kV also. स्टैंडर्ड इज 132 kV. तो जो भी कंज्यूमर मेरा जो वोल्टेज चाहे उसको वही वोल्टेज मिल जानी चाहिए. दैट इज फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर हैज टू बी देयर. ओके, सो दीज आर मेजर माय 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पावर सिस्टम. तो हम वन बाय वन इनको अचीव करेंगे. पहले के लिए क्या बताया मैंने आपको कि इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच के ऊपर फोकस करना पड़ेगा टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर किलोवाट आवर टू ए मिनिमम वैल्यू. सेकंड क्या मेरे को, रेटेड वोल्टेज चाहिए, रेटेड फ्रीक्वेंसी. सो रिएक्टिव पावर कंट्रोल. रिएक्टिव पावर कंट्रोल क्या करता है मेरा, वोल्टेज को कंट्रोल करता है. एंड लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल टू कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी. रिलायबल पावर सप्लाई चाहिए तो क्या, मेरे ट्रांसमिशन लाइन अच्छे होने चाहिए, HVDC लिंक्स होने चाहिए. ठीक है, मेरे जो पावर प्लांट्स हैं वो रिलायबल होने चाहिए, लाइक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स जो एक बार चलता है तो फिर चलता ही रहता है. हाइड्रो पावर प्लांट्स दे आर वेरी रिलायबल एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट. बिकॉज थर्मल पावर प्लांट में मशीनरी बहुत होती है, लाइक बॉयलर, टर्बाइन, ऑक्सिलरीज. सो जितनी ज़्यादा मशीनरी रिलायबिलिटी उतनी ही कम हो जाती है. अदरवाइज अगर रिलायबिलिटी बढ़ानी है आपको तो हम क्या करते हैं, हम बैकअप यूज करते हैं. लाइक जहाँ पे एक मोटर या एक पंप चाहिए, मैं वहाँ पे 2 पंप लगाऊंगा और एक को रखूंगा ऑपरेशन में, एक हमेशा रहेगा स्टैंड बाय में. इन केस ये मेरा बंद होता है तो ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा एंड इट विल टेक द लोड.
तो इस तरीके से मैं अपने थर्मल पावर प्लांट में या जिसकी भी रिलायबिलिटी कम होती है वहां पे रिलायबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पैरेलली मोर देन 1 यूनिट्स यूज करते हैं हम एज ए बैकअप. ओके, देन माय फोर्थ इज फास्टर फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन. तो फॉल्ट के लिए हम क्या पढ़ेंगे? फॉल्ट एनालिसिस, माय स्विच गियर प्रोटेक्शन, ओके, एंड माय स्टेबिलिटी कि कितनी देर में मेरा फॉल्ट क्लियर हो जाना चाहिए सो दैट माय सिस्टम रिमेन्स स्टेबल. देन फ्लेक्सिबल पावर ट्रांसफर ओवर वाइड रेंज ऑफ वोल्टेजेस. इसका मैंने बताया था आपको कि हम यहाँ पे केबल्स यूज करेंगे और डिफरेंट वोल्टेज लेवल पे अपना पावर ट्रांसमिट करेंगे. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं इन डिटेल अवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो to study the economic factors, first we will see what is the base load and what is my peak load plan. Okay, so suppose in any load system, like in any city, if there is a city, there will be some hospitals, there will be some schools, office, residential buildings. Residential buildings will consume more load during night. Okay, hospital 24/7, school 8 to 2, office 10 to 6 maybe. Okay, so the entire load is not focused and the entire load is not consumed at the same time. Okay, it varies from time to time. Like maybe in morning the my loading is less, but in the afternoon it increased. In the evening it also gets increased, and then night slow down, and in the night like 11 o'clock it comes further down. Okay, so this is my load characteristics of a power system. You can see it. ये है मेरा. तो जो मेरा सबसे मिनिमम लोड तक होता है कि जितना लोड 24/7 प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं बेस लोड. मीन्स दिस लोड विल ऑलवेज बी प्रेजेंट, एंड द लोड दैट इज एक्सीडिंग दैट लोड इज द पीक लोड. जैसे कि आपने सुना होगा, लाइक इन दिल्ली दिस समर इन दिल्ली द पीक लोड वाज 6998 मेगावाट, लाइक दिस. सुना है आपने? सो इन दिस वे वी कैन ड्रॉ अवर लोड कर्व. ये मेरा टाइम है ओवर द टाइम, जिसमें बेस लोड, जिसमें पीक लोड. अब मेरे को चूज करना है कि मुझे बेस लोड कौन से पावर प्लांट से सप्लाई करना है और मुझे पीक लोड कौन से पावर प्लांट से सप्लाई करना है फॉर द मिनिमम कॉस्ट. पीक लोड हमारी जो प्रेफरेंस रहेगी ना, वो पीक लोड हम सप्लाई करेंगे दैट प्लांट विच कैन रीच फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड in minimum time. Okay, which can reach from no load to full load in minimum possible time. उसको हम यूज करेंगे पीक लोड. दैट इज कि अगर मेरा यहाँ पे सपोज 9 बजे मेरा एकदम से लोड इंक्रीज हुआ, सो दैट आई कैन स्टार्ट माई जनरेटर्स एंड मैच द पीक डिमांड इंस्टेंटली और मीन्स विद इन ए फ्यू टाइम लिमिट. ठीक है, तो पीक लोड मेरा जनरली होता है. हाइड्रो पावर प्लांट्स आर वेरी मच सुटेबल फॉर द पीक लोड पावर प्लांट्स और एज सप्लाइंग एज द पीक लोड. ठीक है, उसमें क्या आते हैं? पंप स्टोरेज प्लांट, हाइड्रो, डीजल ऑल्सो. क्योंकि डीजल में भी क्या होता है? डीजल इंजन होता है, आईसी कंबशन इंजन, आईसी. ओके, माई गैस टर्बाइन. ओके, तो ये इन चारों प्लांट की क्या प्रॉपर्टी है? टाइम फॉर नो लोड टू फुल लोड इज वेरी लेस, बट एट द सेम इंस्टेंट यू हैव सीन इन अ थर्मल पावर प्लांट हाउ डज इलेक्ट्रिसिटी इज मेड. एक बॉयलर होता है, बॉयलर में हम हीट करते हैं वाटर को, कोल फायर्ड है या फिर कैसा भी है. देन स्टीम कम्स, सुपर हीटेड स्टीम, देन इट पास थ्रू ए टर्बाइन. ओके, देन टर्बाइन इज कपल्ड टू ए जनरेटर जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. फाइन, ये तो हुआ सिंपल सा डायग्राम. बट जब मेरे टर्बाइन ब्लेड्स होती है ना, लाइक इफ दिस टर्बाइन इज स्टॉप्ड फ्रॉम लाइक 1 month, इट इज स्टॉप्ड फ्रॉम द पास्ट 1 month. ओके, इसका टेम्परेचर कितना होगा मेरा? सपोज 20 to 30 डिग्री सेल्सियस. इफ माई टर्बाइन इज नॉट वर्किंग, तो जो मेरी टर्बाइन ब्लेड्स हैं उनका टेम्परेचर होगा 30 डिग्री सेल्सियस. मेरा स्टीम है सुपर हीटेड स्टीम 540 डिग्री सेल्सियस और मे बी मोर. इफ इट इज ए क्रिटिकल पावर प्लांट तो और भी ज्यादा हो सकती है मेरा स्टीम टेम्परेचर. ओके, तो अगर मैं एकदम से इंस्टेंटली 540 डिग्री सेल्सियस दे दूंगा टर्बाइन की ब्लेड पे, देन माई टर्बाइन ब्लेड्स विल गेट डैमेज्ड. क्योंकि एकदम से इतना डेल्टा टी आएगा तो मेरा अनइवन एक्सपेंशन होगा, एंड माई टर्बाइन ब्लेड्स विल बी डैमेज्ड. टर्बाइन वर्क नहीं करेगी. सो व्हाट वी डू, slowly we open the valve. Here is a valve, governing valve. Like पहले 1% steam देंगे, 2%, then gradually temperature is increased.
जो मेरी एक मैनुअल होती है, स्टीम टरबाइन के साथ मैनुअल आती है, इन दैट देयर इज ए लोडिंग कर्व कि आपको स्टीम कैसे कैसे देनी है. सो माय स्टीम टरबाइन नियरली टेक्स 8 to 10 hours फ्रॉम स्टैंड बाय, मीन्स 30 डिग्री सेल्सियस से ब्लेड से टेम्परेचर को 540 तक लेके जाने के लिए इट टेक्स 8 to 10 hours, एंड इन दैट पीरियड इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लोड. सिर्फ हम इस पर स्टीम देते हैं और इसके ब्लेड्स को हीट करते हैं. सो 8 to 10 hours तो इसमें स्टार्ट होने में लगते हैं. देन वी हैव टू कपल द जनरेटर, इंक्रीज द लोड, फिर जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी, देन वी हैव टू सिंक्रोनाइज, एंड देन इट कैन सप्लाई द एक्टिव पावर, और देन इट कैन सप्लाई द लोड. सो मेरा थर्मल पावर प्लांट टेक्स वेरी हाई टाइम फ्रॉम रीचिंग फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड. इसलिए हम उसको कहाँ यूज करते हैं? बेस लोड में. न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एक बार स्टार्ट हो जाएंगे तो उतने ही आउटपुट पे चल जाएंगे. When we achieve the criticality of a nuclear power plant, so once after start, it will keep on working for very long. But once when you want to replace the fuel, और जब आप उसको एक बार बंद करके स्टार्ट करोगे, then it takes very long time. Okay? एक रिएक्टर की क्रिटिकलिटी अचीव करने के लिए 2 to 3 to 4 months भी टाइम लग जाता है. ओके, द थर्ड वन इज रन ऑफ रिवर प्लांट. रन ऑफ रिवर प्लांट में हमारे पास ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई रिजर्वायर नहीं होता, सिर्फ एक फ्लोइंग रिवर है. उस फ्लोइंग रिवर में आप टरबाइन डाल के इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो. ओके, सो देयर इज नो मच ऑप्शन फॉर अस. फोर्थ इज हाइड्रो. हाइड्रो यहाँ पे कौन सा आएगा मेरा? लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स. अगर मेरे पास वाटर की अवेलेबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं हाइड्रो पावर प्लांट्स को भी एज ए बेस लोड यूज कर सकता हूँ, अगर मेरे पास वाटर की कोई भी स्कार्सिटी और कमी नहीं है तो. बट इफ आई हैव लेस वाटर रिसोर्सेज तो मैं हाइड्रो को एज ए पीक लोड प्लांट यूज करता हूँ. या फिर पंप स्टोरेज में क्या होता है? सपोज दिस इज माई डैम, दिस इज माई रिजर्वायर, दिस इज डैम. एक यहाँ पे पाइप है, वाटर टनल बोलते हैं इसको, पेन स्टॉक या फिर वाटर टनल. इट कम्स, यहाँ पे टरबाइन है, इसका रोटेट करेगी टरबाइन, एंड देन इट इज स्टोर्ड इन द डाउन स्ट्रीम. आई एम सेइंग इन ए पंप्ड स्टोरेज प्लांट. तो जब मेरे को पीक लोड की रिक्वायरमेंट होती है, व्हेन माय रिक्वायरमेंट इज पीक लोड, तो यहाँ से मेरा पानी आता है ऊपर से नीचे, and it drives the turbine and gets stored here. ठीक है. Suppose during this time when peak load is required, मैंने अपने पंप स्टोरेज प्लांट में जो ऊपर रिजर्वायर में पानी था उससे मैंने इलेक्ट्रिसिटी बना ली. बट when there is no peak load, suppose in the night like load comes like this, ठीक है, तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पावर है, बेस लोड मेरा ज्यादा हो गया उस टाइम के लोड से. so this extra power is used by this turbine. Now the generator acts as a motor, टरबाइन एक्ट्स एज ए पंप. ओके, जब मेरा लोड नहीं रहेगा, ऑफ पीक लोड में माय जनरेटर विल बी मोटर, टरबाइन विल बी पंप, एंड इट विल पंप द वाटर बैक टू द रिजर्वायर, एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे दिस वाटर विल अगेन बी यूज्ड फॉर फर्दर लोड रिक्वायरमेंट्स. फाइन, आई होप यू गॉट इट. क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पानी इनफ नहीं है. अगर मेरे पास इनफ अमाउंट ऑफ वाटर होता है यहाँ पे, तो मैं एक हाइड्रो पावर प्लांट को एज ए बेस लोड पावर प्लांट भी यूज कर सकता था. फाइन. नाउ तो बेस लोड कौन सा होगा? थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो. सोलर पावर प्लांट ऑल्सो यूज है बेस लोड पावर प्लांट, बिकॉज सोलर तो रिलायबल भी नहीं है. इफ देयर इज ए क्लाउडी डे तो सोलर मेरे को आउटपुट नहीं देगा, नाइट में भी सोलर आउटपुट नहीं देगा. सो दे आर कंसिडर्ड इन बेस लोड ओनली, कि व्हेनेवर दे विल गिव ओनली. देन माय विंड पावर प्लांट ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए बेस लोड पावर प्लांट, क्योंकि चल रही है हवा तो चल रही है. यू कांट स्टॉप द एयर, यू कांट स्टॉप द विंड टू फ्लो, एंड यू कांट मेक द विंड फ्लो. ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद बेस लोड, पीक लोड. बस इतना याद रखना, जो मेरा पावर प्लांट बहुत इजीली नो लोड से फुल लोड पे चला जाए विद इन वेरी लेस टाइम, दे आर यूज्ड फॉर पीक लोड पावर प्लांट्स. फाइन. नाउ you can see, due to temperature consent of the turbine, the thermal and nuclear power plants, it requires more time for the generator to increase the load from no load to full load. मेरा temperature consent होता है turbine का, it's not consent, it's constraint. Okay, due to temperature constraint of the turbine, the thermal and nuclear power plants of the turbine, in the thermal and nuclear power plants, it requires more time for the generator to increase the load from no load to full load. Hence these are used as a base load supply plants only. 8 to 10 hours में जाके मेरी टरबाइन लोड लेती है. सो बेटर हम उसको स्टार्ट करके रखते हैं, एंड इट ऑलवेज सप्लाई अस द बेस लोड. बेस लोड को हम थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट से सप्लाई करते हैं,
क्योंकि न्यूक्लियर प्लांट में भी जो बेसिक क्या होता है कि यहाँ पे जो रिएक्टर होता है, रिएक्टर में हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे एक हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर इस यहाँ से कूलेंट आता है रिएक्टर के अंदर से कूलेंट, उस कूलेंट से हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंज करता है वाटर इनसाइड, स्टीम आउट, और ये स्टीम आके फिर मेरी एक टरबाइन को ड्राइव करती है। देन टरबाइन इज कपल्ड टू ए जनरेटर। सो यहाँ पर भी एक टरबाइन है। अब ध्यान रखना जहाँ पर भी स्टीम टरबाइन होगी वो प्लांट मेरा हमेशा बेस लोड की तरह यूज होगा, बिकॉज स्टीम टरबाइन टेक्स वेरी हाई टाइम टू रीच फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। ओके, रन ऑफ रिवर प्लांट्स डज नॉट हैव एनी स्टोरेज। मैंने बताया था रन ऑफ रिवर क्या है, जो सिर्फ वाटर फ्लो कर रहा है उस फ्लोइंग वाटर की एनर्जी को यूज करके ही फंक्शन करते हैं। सो दे डज नॉट हैव एनी रिजर्वायर फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर एंड हैज नॉट सुटेबल फॉर सप्लाइंग पीक लोड डिमांड। Hydro plant can be used as both base and peak load supply plant. During rainy season, water availability is more and hence used as a base load power plant. And peak load कब यूज करेंगे हम उसे? अगर मेरा वाटर इनफ है तो मैं उसको बेस की तरह भी यूज कर सकता हूँ, पीक की तरह भी यूज कर सकता हूँ। बट इफ माई वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन इट इज यूज ओनली फॉर सप्लाई पीक लोड डिमांड। ओके, पंप स्टोरेज प्लांट का मैंने आपको बताया था, अगर पीक लोड है तो वो क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा। बट अगर पीक लोड से कम लोड है तो वो किसी भी एडजॉइनिंग पावर प्लांट से पावर लेके अपने वाटर को वापस रिजर्वोयर में भेज देगा, किसी और जनरेटर से सप्लाई लेगा। ओके, यू कैन रीड इट। Pumped storage plants are similar to hydropower plants containing both upstream and downstream tank. Both upstream and downstream, ऊपर भी टैंक था, then pen stock, यहाँ पे टरबाइन था, यहाँ पे जनरेटर, and here there was also a tank. Okay, pumped storage plants are similar to hydropower plants containing both upstream and downstream tank. During peak load period, water flows from upstream to the turbine. जब peak load है तो मेरा ये जनरेट करेगा तो वाटर ऊपर से आएगा टरबाइन पे। ओके, and this water is stored in the downstream tank during off peak load period. जब मेरा लोड पीक में नहीं है, मतलब लोड मेरा अब रिक्वायरमेंट कम है, मेरी जो मेरा पावर सिस्टम है उसको लोड की रिक्वायरमेंट कम है, इसका मतलब कहीं और जो जनरेटर जनरेट कर रहा होगा ये वहां से एनर्जी लेके नाउ इट्स जनरेटर विल एक्ट एज मोटर, टर्बाइन विल एक्ट एज पंप एंड इट विल सेंड द वाटर बैक फ्रॉम डाउनस्ट्रीम टैंक टू अपस्ट्रीम टैंक। ठीक है, जनरेटर स्टार्ट्स वर्किंग एज ए मोटर एंड टर्बाइन इज वर्किंग एज ए पंप by taking the power from other parallel generators and water is sended back from the downstream to upstream and ready for service to meet the next day peak load. अब जब अगले दिन जब पीक लोड की डिमांड आएगी तो फिर से ये वाटर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम आएगा, टरबाइन को ड्राइव करेगा और मेरा पावर जनरेट करेगा। ओके, सो ये है मेरे पंप स्टोरेज प्लांट के एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेज इज they are most economical as a peak load supply plant. Most economical as a peak load supply plant. वाटर की अवेलेबिलिटी की भी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसी वाटर को हम पहले तो ऊपर से नीचे लाते टाइम जनरेट करते हैं एंड देन दैट सेम वाटर इज पंप बैक। ओके, यूज्ड एज लोड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल यूनिट, मीन्स जब भी मेरे पावर सिस्टम में पावर जनरेटेड इज लेस देन द पावर डिमांड तो मेरी फ्रीक्वेंसी क्या करती है, ड्रॉप करती है। तो उस टाइम पे मैं अपने पंप स्टोरेज प्लांट से और एनर्जी जनरेट कर सकता हूँ सो दैट P is equals to P demand and my frequency gets stabilized. अगर कभी भी मेरा पावर जनरेशन इज लेस देन पावर डिमांड तो मेरी जो पावर सिस्टम है उसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने लगती है, तो उस टाइम पे मैं अपने पंप स्टोरेज प्लांट से अपनी पावर जनरेट करूंगा सो दैट माई पावर जनरेटेड इंक्रीज, और जब ये दोनों डिमांड और जनरेशन मैच कर जाएंगे तो मेरी फ्रीक्वेंसी कैन बी स्टेबलाइज्ड और इट कैन बी रिस्टोर्ड। इफ इट इज कंबाइंड टू थर्मल प्लांट के साथ कंबाइन कर लेंगे तो देन लोड फैक्टर ऑफ एन एरिया इज इंक्रीज। अब लोड फैक्टर क्या होता है वो मैं नेक्स्ट टॉपिक है हम वो पढ़ेंगे, तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि कैसे ये लोड फैक्टर को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, आई विल टेल यू, डोंट वरी। इट इज इजीली अडेप्टेबल फॉर रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन। कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें मेंटेनेंस बहुत कम होती है। ठीक है, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस एंड दे आर सुटेबल फॉर रिमोट ऑपरेशन। दैट मीन्स दिल्ली में बैठ के हम हिमाचल या उत्तराखंड में एक हाइड्रो पावर प्लांट या पंप स्टोरेज पावर प्लांट को ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड लेस पोल्यूशन। हाइड्रो पावर प्लांट है तो मेरा पोल्यूशन विल बी वेरी वेरी लेस। ओके, नाउ व्हाट इज वी सजेस्ट बेसिक्स। और क्या मेरा बेस लोड होता है, क्या मेरा पीक लोड होता है। किसी भी कोई भी पावर सिस्टम है उसका इफ ये मेरा लोड कर्व है तो ये जो लोड है ये है मेरा बेस लोड और ये है मेरा पीक लोड जो मेरा पीक टाइम में आता है, एंड दिस इज माई बेस लोड। और मेरे सामने देखे फिर कि कौन से पावर प्लांट को हम बेस लोड की तरह यूज करेंगे।
कौन से पावर प्लांट को हम पीक लोड की तरह यूज करेंगे. फाइन. देन वी सॉ पम्प स्टोरेज प्लांट इन डिटेल. ओके, वन बाय वन वी विल सी अदर प्लांट्स आल्सो. ठीक है, उसके पहले हम देखेंगे प्लांट लोड फैक्टर एंड वेरियस प्लांट फैक्टर्स. ओके, सो वी विल सी देम इन द नेक्स्ट सेशन. फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच. सी यू.